adjectives. So you all may come to page number 32 of your textbook. Very good evening, everyone. Page 32 of your textbook, the possessive adjectives. Keep a pencil with you. Shall we begin? Are you ready? Are you all with me? Yes? Okay, great. So, I have covered this topic for some of you during your exam, since you had this in the portion, but this has not been covered with all of you. So let's do this topic for all. In case you have any doubt, you will let me know in the chat. Okay, so let's start. Possessive adjectives. Before I start with it, when you hear the name, what do you think you understand by this? When do you think are the possessive adjectives used? What do you mean by possessive adjectives? In the chat, you may let me know. You can put the possessive adjectives in English, in Hindi, in the chat. Very good, very good. So Nishita says possessive adjectives are used when you want to indicate that there is something that belongs to us or somebody. Okay. So words like when I have a bottle with me, okay, and when I want to say belongs to me, I will say my bottle, my phone, my book, and so on. So when there is something that belongs to me, when there is something that I possess, when there is something that I dash, it's an easy word. It starts with H. What do you think? Something that you H. What is H? For that, we use possessive adjectives. It's a simple word. We use it in our day-to-day life. A very common word. Starts with H, four-letter word. To say that there is something that belongs to us, something that we possess. What is a different word? If I want to replace possess, what will I use? Mm, okay, but those are all French words. To say it is my thing, your thing. When can I say it's my bottle? When I own it, right? So what is to own? To own is to have. Very good, very good, perfect. I was looking for this word. So when there is something that you have, something that you possess, there is something that belongs to you, okay, that is when we use possessive adjectives. Am I clear? Possessive adjectives are used to indicate that there is something that you have, something that belongs to you, something that you own. Okay. Now, when je is the subject pronoun in the sentence, when there is je in the subject place, we will use the possessive adjectives mo, ma, or me, which means when I have the word I in the sentence, I will use my. I have my phone with me. Okay. So because there is I in the sentence, I have used my. I के साथ my. वैसे ही you के साथ क्या होगा? Think and tell me in the chat. Quick, quick, quick. It's not that difficult. Use the chat. Your. Very good. You के साथ your. He के साथ his. She के साथ her. Very good. We के साथ we के साथ are. Okay. Remember, do not add s. Okay. O-U-R-R. O-U-R-R. Our. A-R-E-R is a verb. Okay, Tanishka. So don't get confused. When I say R, it means O-U-R-R. Apna. Hamara. All right. So remember, again, there are two things to remember. If it's O-U-R-S, then it is not a possessive adjective. It's a possessive pronoun. So we do not add S at the end. Hers, ours, yours. ऐसा नहीं होगा. It's R, your, her without the S. All right. So the ones without the S are the possessive adjectives. All right. So we will not add S. Remember, this is very important. Then R, A-R-E-R that you have written, Tanishka, that is etra ka conjugation. All right.
to be, I am, you are, he is, and so on. So ARER etra wala conjugation hai. We are talking about OUR, apna, hamara. All right. So don't be confused between these two things. Well, let's continue. तो वैसे ही जैसे हम I के साथ my यूज करते हैं, वैसे ही इन फ्रेंच ज के साथ मो, मा या तो मे यूज करते हैं. तो मैम तीन तीन कैसे? हाउ डू यू नो कौन सा माई है? तीनों माई है. ओके, सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मो, मा एंड मे, ऑल द थ्री वर्ड्स मीन माई. अगर चाहिए तो लिख दो वहां पे पेंसिल से. सो देन मैम हमको कैसे पता चलेगा कौन सा माई कभी यूज करना है? गुड क्वेश्चन. You have to check the number and gender of the word. ब्लैंक के बाद, डैश के बाद वाला वर्ड जो होता है उसका नंबर एंड जेंडर आप चेक करोगे. इफ द नंबर एंड जेंडर इज मैस्कुलिन सिंगुलर तो आप मो यूज करना, फेमिनिन सिंगुलर है तो मा यूज करने का, प्लूरल है तो मे यूज करने का. जस्ट लाइक इन हिंदी, मो इज मेरा, मा इज मेरी एंड मे इज मेरे. मेरा, मेरी, मेरे. मो, मा, मे, मेरा, मेरी, मेरे. So what do you think tauta te would be in Hindi? If mo, ma, me is mera, meri, mere, tauta te is? Very good Himani, very good Nishita, very good Amberlin, tera, teri and tere. Okay. So when do you use tera, teri and tere? जब भी subject pronoun में tu होगा तो. All right. Otherwise you will not use tauta te. So in a sentence you have to be very careful. कौन से subject pronoun का बात हो रहा है? Where is the subject pronoun in the sentence? What is the subject pronoun? Accordingly decide. जो हुआ तो मो, मा, मे लिखेंगे तीनों में से एक. क्यों हुआ तो ता ते में से एक यूज करेंगे. इल, एल या ओ हुआ तो सौ, सा, से में से यूज करेंगे. ओके. तो सौ, सा एंड से क्या हुआ यहाँ पे हिंदी में? उसका, उस. वेरी गुड हिमानी. उसका, उसकी, उसके. ओके. सो आई रिपीट, मोमा में इज मेरा, मेरी, मेरे. तोता ते, तेरा, तेरी, तेरे. सौसा से उसका, उसकी, उसके. नौत्र, नौत्र नो इज हमारा, हमारी, हमारे. वेरी गुड हिमानी निशिता. वॉत्र, वॉत्र वो इज आपका, आपकी, आपके. करेक्ट. वेरी गुड. सो यू सी द डिफरेंस. तोताते एंड वॉत्र वॉत्र वो दोनों का मीनिंग क्या है? योर, YOUR. तो डिफरेंस क्या है? एक तेरा, तेरी, तेरे है. तोताते वाला इज तेरा, तेरी, तेरे. वॉत्र वॉत्र वो इज आपका, आपकी, आपके. व्हाट इज द डिफरेंस? The difference is the respect. When you're talking about somebody elder, you will say आपका, आपकी, आपके, and so on. But when you're talking to your friend, you will say tera, teri, and tere. But that doesn't happen in English. In English, whether it's elder or younger, you simply say your or you. है ना? याद है? तो जैसे हिंदी में अलग अलग वर्ड्स है, वैसे ही फ्रेंच में भी अलग अलग वर्ड्स है. तेरा, तेरी, तेरे इज तोताते. आपका, आपकी, आपके इज वॉत्र वॉत्र वो. Okay, so last one, what do you think it would be? Lur, lur, lur. Very good, Nishita. Unka, unki, unke. Very good, Nishita. Meet, Tanishka. Great, good going. So I hope you've understood what is the whole table about. मोमा में मेरा, मेरी, मेरे. तोता ते, तेरा, तेरी, तेरे. औसा से उसका, उसकी, उसके. नौत्र, नौत्र नो हमारा, हमारी, हमारे. वॉत्र, वॉत्र वो आपका, आपकी, आपके. एंड लर, लर, लर उनका, उनकी, उनके. डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस यू विल डिसाइड क्या यूज करना है. जो हुआ तो मोमा में, क्यों हुआ तो तोता थे, एंड सो ऑन. ऑल राइट. अभी आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन बिकॉज आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चंस इन द चैट, और लेट मी अनम्यूट यू एंड आस्क द क्वेश्चंस. So I'm going to ask the question to, let me see, Prachi. Prachi, unmute yourself. Yes, ma'am. Yeah, Prachi, क्यों के साथ क्या यूज करेंगे हम? The possessive adjective along with you would be, what are the three options? Very good. I'm getting the answers in the chat. Meet, very good. Nishita, very good. Prachi, are you there? Seems Prachi has some problem. Prachi, do you want me to unmute yourself once again? Okay, I'm going to unmute Ramandeep. It seems there is some problem from her end. Ramandeep, click on unmute. Hello, ma'am. Hello. So, Ramandeep, the question remains the same. Along with you, what are the options you have?
Contates. परफेक्ट, वेरी गुड. अभी रमनदीप आप ही बताते जाओ फटाफट so that we can go ahead quickly. What will I use for il or l? Il, il or ell? Lecture and lectures. Il, il, ell, singular. Uh, Okay, no worries. I'm going to pass on the question to Arya and Ramandeep. You will let me know if you've still not understood after she answers. Yes, Arya, il and l के साथ. Can you hear me, Arya? Click on unmute. Il और l के साथ Arya. Can anyone hear Arya? No? Okay. Let me pass on the question to Meet. Arya, check your mic. Hello, ma'am. Yes. Arya, sorry, Meet, the question is, il, l के साथ क्या use करेंगे? Lurs. No, okay. Meet, I'm going to put the question in the chat. Meeting अच्छे से देखना. I'm talking about il, l, singular. Il and ell. सौ सा से. Very good. और अगर plural होता तो ILS and ELLS होता तो लर्स. correct. Nu के साथ क्या use करूँ मैं मीत? मैम नु और वो. Nu, NOU. Okay, I'm putting it in the chat. So that नोत्र नो. very good. Nu के साथ नोत्र. Mu के साथ वत्र वो. very good. Jo के साथ मो मा में. क्या बात है. Excellent. Has everyone understood? Thank you, Meet. सबको समझा ये टेबल? Okay, I'll give you 1 minute to go through the table. In case you have any doubt, please make sure that you ask. If not, we'll continue. There is one more thing that I need to add to complete this topic. No doubt? Okay. So, now so far हमने देखा कि masculine singular हो तो मो, तो, वो सब यूज करने का. फेमिनिन हुआ तो फेमिनिन कॉलम यूज करने का, माता सा वाला. प्लूरल हुआ तो मे ते से वाला कॉलम यूज करने का. ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन डैश के बाद वाले वर्ड का नंबर एंड जेंडर. क्लियर कि हमको मैस्कुलिन यूज करना है, फेमिनिन वाला यूज करना है या प्लूरल वाला वर्ड यूज करना है. ना हु डिसाइड्स मोमा में यूज करूँ, तोता से यूज करूँ या सौसा से. So that is always decided by, in the chat let me know. Yeah, नंबर एंड जेंडर. नंबर एंड जेंडर के लिए ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, डैश के बाद वाला वर्ड डिसाइड करेगा कि मैं मो यूज करूं, मा यूज करूं कि मे यूज करूं. करेक्ट, यू आर राइट फॉर दैट. बट हाउ डू आई नो कि मैं मोमा में यूज करूं कि तोता ते यूज करूं कि सौसा से यूज करूं? ये कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट. वेरी गुड निकांद्रो, परफेक्ट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. तो सब्जेक्ट में ज हुआ तो हमारे पास आंसर में 3 ऑप्शंस रहेगा, मो मा मे. ओके, सो फर्स्ट थिंग आई विल डू इज लुक फॉर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. ज हुआ तो मोमा में से आंसर रहेगा. अभी मोमा में से मैं कौन सा यूज करूं, तो उसके बाद उसके लिए डैश के बाद वाला वर्ड डिसाइड करेगा. एम आई क्लियर नाउ? ओके, one more thing I will add. Suppose the vowels clash. अगर vowels clash हुआ, जैसे चार्ट में देखो, if I say ma ami, okay, the example is in the chat. ma ami, vowel clash हो रहा है, ma का a and ami का a, बराबर. am I right? तो ऐसे जब vowels clash होता है तो माँ को मो में चेंज करने का. ओके, सी नीचे दिया है, मा आमी चेंजेस टू मोनामी. क्यों? नीचे ब्लू वाला कॉलम देखो, ब्लू वाला. दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वॉवल्स क्लैश. ओके, सो मो चेंजेस टू मा, नहीं, मा चेंजेस टू मो. सो बी वेरी केयरफुल विद दिस. वॉवल्स क्लैश होगा तो ही करना ये. ता चेंजेस टू तो, है ना. ता एक कॉल देखो,
अगेन इट्स गिवन बिलो इन द ब्लू बॉक्स. तो ता एकोल में टी ए का ए क्लैश हो रहा है, एकोल का ई क्लैश हो रहा है, विच इज वाई ता हैज चेंज टू टॉन एकोल. सा ऑटो हैज चेंज टू सॉन ऑटो, क्योंकि सा का ए एंड ऑटो का ए क्लैश हो रहा है. सो यू सी व्हेन द वॉवल्स आर क्लैशिंग, मा विल चेंज टू मो, ता विल चेंज टू तो, एंड सा विल चेंज टू सो respectively. इज्जत से, right? Remember, ma changes to mo, ta changes to to, sa changes to so. कभी in case of vowel clash. ओके, तो मैम नोत्र आमी लिखा तो भी तो वॉवल क्लैश हो रहा है, तभी क्या करने का? टेल मी व्हाट विल यू डू इफ नोत्र आमी लिखा एंड वॉवल क्लैश हुआ तो? हाँ, एन अपोस्ट्रोफ नहीं करना है, हम नोत्र का नोत्र ही लिखेंगे. हम क्या कर रहे थे अभी तक? फेमिनिन सिंगुलर मा आमी क्लैश हो रहा था तो मो लिख रहे थे, है ना? हम मैस्कुलिन के पास जा रहे थे. ता क्लैश हो रहा था तो लिख रहे थे. सा क्लैश हो रहा था तो सो लिख रहे थे. अभी नौत्र क्लैश होगा तो क्या आप फिर से नौत्र के पास ही जाएंगे? वॉत्र में क्लैश होगा तो क्या करेंगे? फिर से वॉत्र के पास ही जाएंगे, बिकॉज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सिंगुलर के लिए सेम वर्ड्स है, राइट? सो व्हाट वी विल डू इज वी विल लेट द वॉवल्स क्लैश, होने देने का क्लैश. और क्या? क्योंकि हमारे पास और कोई वर्ड ही नहीं है, राइट? देयर इज नथिंग एज एन अपोस्ट्रोफ इन द कॉलम. देखो ये टेबल में किधर एन अपोस्ट्रोफ है? नहीं है. तो वी विल नॉट राइट एनीथिंग, हम कुछ खुद से क्रिएट करके नहीं लिखेंगे. ऑल राइट. अभी लर में क्लैश हो सकता है क्या वॉवल? सोचो जरा. लर आमी, आर द वॉवल्स क्लैशिंग व्हेन आई एम राइटिंग? नहीं ना, क्योंकि लर इज एंडिंग इन आर एंड आमी इज बिगिनिंग विथ वॉवल, so there is no point of vowel clash at all. So in that case, good, vowels are not clashing, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. Understood this? Now that you have got this thing clear, I'm going to show we are going to solve an exercise. I'm going to display sentences on screen. Okay, so we are doing exercise number 4 and 5. All right, आपके टेक्स्ट बुक में सेम चैप्टर में एक्सरसाइज 4 and 5 है. All right, exercise 4 and 5. Come to that, keep a pencil in your hand. We'll solve these 10 sentences. It is on your screen. Can you see the exercise now? Has the black box disappeared? Exercise number 4 and 5. Okay, I'll tell you the page number so that you will know exactly. Page number 33, exercise 4 and 5. Okay, it's there right on the screen. Can you all see it? Shall we start? Is everyone ready? Pencil हाथ में रखा है? Yes. Okay, चलो let's begin then. Unparl. See, what is the question? Choose the appropriate possessive adjective. तो हमको appropriate possessive adjective choose करना है options में से. ब्रैकेट में options दिया है. Unparl are dash army. क्या लिखेंगे हम? option 1 की option 2. चैट में बताओ. Very good. We will write सा की सॉ. We will write सॉ. क्यों ऐसे सॉ क्यों लिखेंगे? आर्मी तो ई से एंड हो रहा है, मतलब वो फेमिनिन है. कैन समबडी टेल मी क्यों हम सॉ क्यों लिख रहे हैं? है ना मैम, ये तो फेमिनिन है. वेरी गुड निशिता, एम्बरलिन, हिमानी, एक्सीलेंट. द वॉवल्स आर क्लैशिंग and because the vowels are clashing, I will use so to avoid the clash. I will use so here. Okay, सा लिखा तो क्या हो जाएगा? vowel clash. Understood? So first answer is so. Now let's go ahead. Second answer क्या रहेगा? LURS या LUR? LURES है ही नहीं. एम्बरलिन, प्लीज बी वेरी केयरफुल. इट्स LUR, LUR and LURS. LURES है ही नहीं. तो LURS, correct. All of you have chosen LURS. Can somebody explain LURS क्यों? Plural है. Very good, excellent. Because it is plural, so we will simply use LURS.
Now the third sentence. Let's read the sentence and let's choose the correct answer. मेर के लिए सौ या सा? Very good. The answers have already come up. It is sa that I will use and not so, क्योंकि मेर is मम्मी, mother. Feminine singular है मम्मी ना, feminine. इसके लिए I will use sa. Very good. Good going. Same way. Let's go ahead with the fourth one. क्या यूज करने का? वॉटर की वो. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. फोटोज प्लूरल, इसके लिए VOS यूज करेंगे. एक्सीलेंट, गुड गोइंग. देन द नेक्स्ट सेंटेंस. न्यू सॉन्ग्स डोंट डैश क्लास. NOS की NOTRE. वेरी गुड. NOTRE क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो नॉत्र. वेरी गुड, वेल डन. गोइंग अहेड. अभी नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इस बार ऑप्शंस नहीं है. तो हम क्या करेंगे? वी विल फॉलो टू थिंग्स. सब्जेक्ट प्रोनाउन ढूंढेंगे. ओके, सब्जेक्ट में जो है तो मोमा में यूज करने का, क्यू है तो तोताते यूज करने का, इल है तो सौसा से, नू है तो नौत्र नौत्र नो, वो के साथ वॉत्र वॉत्र वो, इल्स एल्स के साथ लर लर लर. ऑल राइट. देन अभी तीनों में से कौन सा यूज करेंगे मोमा में, वो डैश के बाद वाला वर्ड डिसाइड करेगा. सो फॉर द फर्स्ट वन, व्हाट डू यू थिंक आई शुड यूज? क्यू के साथ तो, ता या ते? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. It is te because army is with S. It means it's plural, and that is why we have to use TES. All right, all of you are correct. If you have any doubt, please make sure that you ask in the chat. Okay, now the next one, number 2. Didier a dash. Okay, Didier मतलब क्या? It's a name of a boy. Okay, तो हम इल सब्जेक्ट प्रोनाउन कंसीडर करेंगे यहाँ पे, बराबर ना? Didier and dash brother. Didier and dash brother. तो Didier and उसका भाई, उसका क्या है? So very nice, correct. Didier and his brother have black bicycles. करेक्ट. तो सौ समझा यहाँ पे, क्यों सौ? Didier is the name of a boy. इसके लिए इल है ना सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन इल है तो आंसर शुड बी फ्रॉम सौ सा से. अब सौ सा से में से सौ चूज किया क्योंकि फ्रेयर इज मैस्कुलिन सिंगुलर. अंडरस्टूड? सेंटेंस नंबर 3. वाओ, द आंसर्स हैव ऑलरेडी कम अप. गुड टू नो. एम्बरलिन सोचो जरा अच्छे से. इज योर आंसर करेक्ट? एल्स है, एल्स के साथ हम लर वाला कैटेगरी यूज करेंगे. सो डू वी यूज LEUR और डू वी यूज LEURS? एम्बरलिन सोचो. वेरी गुड, शी सेल्फ करेक्टेड हरसेल्फ. इट इज LEUR क्योंकि मॉन्ट्रो इज सिंगुलर है ना, तो हम LEURS नहीं यूज करेंगे, LEUR ही लिखेंगे. ऑल राइट, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग सो फार? सेंटेंस नंबर 4. Wow, the answers are coming up real fast. Good going. Keep up the good work. वो के साथ तो सिंपल है, वी विल यूज वॉटर या तो वो. अब हम वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्लूरल नहीं है, तो हम वॉटर यूज करेंगे, सिंगुलर. ऑल राइट. एंड आंसर्स चैट में भी सबने वॉटर ही लिखा है. सो गुड, वेल डन. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन. सेंटेंस नंबर 5. Okay, very good. I'm so happy your answers are coming up correctly. Les enfants. Les enfants मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? Your answers are right. I just want an explanation कि आपने वो चूज क्यों किया. Very good हिमानी, perfect. Les enfants is ils, ILS है ना. इल्स के साथ लर एंड लर विथ एस, ये दोनों में से कुछ यूज करना होता है. तो यू हैव करेक्टली चोजन LEURS. क्यू लर विथ एस क्यू? क्योंकि बालों इज विथ एस, बलून्स प्लूरल, इसके लिए लर विथ एस. हैव यू अंडरस्टूड दीज 10 sentences everyone? एनी डाउट? किसी को किसी पे शक? No doubt? Okay, great.
then I will go ahead and start a new small topic. Chalega? Are you ready for the next topic? Okay. So the next topic that we are doing is on page 4444. 44. I'm going to scroll down so I can display the same to you. अच्छा ये हटाना पड़ेगा मुझे annotations. Okay. Are you ready? 44 आ जाओ जल्दी. Yeah, here it is. Okay. 44 is demonstrative adjectives. Okay. So demonstrative adjectives, again they agree in number and gender. जैसे possessive adjectives का number and gender था masculine singular, feminine singular and plural, वैसे इधर भी masculine singular, feminine singular and plural है. ओके तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यूज कभी करने का मैम, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज टू पॉइंट आउट समथिंग, टू शो समथिंग. कुछ दिखाना रहेगा, कुछ पॉइंट आउट करना रहेगा, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना रहेगा, तो वी विल यूज दीज एडजेक्टिव्स. Okay, now what are the adjectives used to point out something, to show something? This or that for the singular word, this girl, that boy, this book, that phone and so on if it's singular. Plural हुआ तो क्या लिखेंगे? this के जगह, this and that के जगह plural में क्या लिखते हैं हम? these and those. Okay, these and those, this that, these those. तो ये चार वर्ड इंग्लिश में जो है उनको हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. दिस दैट एंड दीज दोस. तो सिंगुलर के वहां पे आप लिख सकते हो दिस दैट एंड प्लूरल के वहां पे आप लिख सकते हो दीज दोस. आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे सिंगुलर के पास यू कैन राइट डाउन दिस दैट. ओके, एंड प्लूरल के यहाँ पे आप लिख सकते हो these those. All right, अभी समझा सबको क्या करना है? Here, okay. So the words sir and cet, masculine के लिए दो वर्ड्स है मैम. हाँ, yes, there are two words. Okay, तो कौन सा कब यूज करेगा, कैसे पता चलेगा अपने को? Let's see. ce is used for a masculine singular word. cet is also used for a masculine singular word, but CET will be used only in case of vowel clash. Okay, see sir garçon, CE garçon, vowel clash नहीं हो रहा है इसलिए CE यूज किया. बट स और फॉर लिखा होता तो vowel clash होता ना, राइट स्टूडेंट्स? इसके लिए CET लिखा. set om, CET, H is a vowel in French, you should know. इसके लिए CET लिखा. So CE is used for a masculine singular word. CET is used for a masculine singular word, correct, but it also has to start with a vowel. अगर चाहिए तो लिख दो CET के बाजू में for vowel. Okay, CET is used for a masculine singular word which starts with a vowel. CET is used for a masculine singular word which starts with a vowel. So हम लोग इसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, but before that I will explain the remaining of them. Feminine words now. For the feminine words we will use CETTE. This girl, this school. अच्छा मैम यहाँ पे वॉवल क्लैश हो रहा है CETTE एंड कॉल का E, तो क्या करने का? कुछ नहीं करने का, लेट इट क्लैश. क्यों मैम ऐसे? बिकॉज हमको यहाँ पे टेबल में दूसरा कुछ वर्ड दिख रहा है क्या वॉवल क्लैश के लिए, कुछ और यूज करने के लिए? नहीं, देयर इज नथिंग गिवन इन द टेबल. तो क्या करने का? लेट द वॉवल्स क्लैश, सिंपल. जैसे हम लोग ने नौत्र में वॉवल क्लैश होने दिया, वॉत्र में वॉवल क्लैश होने दिया, राइट? वैसे यहाँ पे सेट में वॉवल क्लैश होने देंगे. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझा ये वाला? CETTE, CETTE कभी यूज होगा? फेमिनिन सिंगुलर के लिए. तो इट डजंट मैटर इट्स फेमिनिन सिंगुलर और इट इज फेमिनिन सिंगुलर प्लस वॉवल. हम लोग CETTE लिखेंगे, वॉवल क्लैश हो रहा है होने देने का. The next best thing is CES,
जिसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो वोवल हो, फर्क नहीं पड़ता है, प्लूरल है, आगमन करके सीईएस लिखने का। से गार्सों, से जोफों, से फी, से जेकॉल, देखो बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर प्लूरल, हमने सीईएस लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैस्कुलिन है तो भी सीईएस, फेमिनिन है तो भी सीईएस, वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो भी सीईएस, प्लूरल है तो आगमन करके सीईएस लिखने का। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? टेबल समझा सबको? नीचे ब्लू में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सीईटी इज यूज्ड फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विथ वोवल और साइलेंट एच। ओके, तो ये सीईटी जो स्टार मार्क है उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे अच्छे से दिया है। Now that everything is explained, if you have any doubt, you ask. If not, we'll go ahead with exercise. Quickly let me know. Doubt solving कुछ है क्या? एक्सरसाइज करना है, जल्दी जल्दी बताओ। No doubt. Ramandeep says no doubt. Himani says no doubt. Nishita says no doubt. If you have any doubt, feel free to ask. Tanishka, no doubt. Okay, great. I'm happy that you all are understanding everything. Okay, let's go ahead to solve an exercise then. Since you all have understood everything, चलो देखते हैं कितना समझा, कौन अच्छे से आंसर कर रहा है। We'll come to exercise which is on page कौन सा है ये? 46 का 1 and 2, पेज नंबर 46 का एक्सरसाइज 1 and 2। ओ यहाँ पे आंसर्स लिखा है, बट नो वरीज, वी विल स्टिल डिस्कस। ओके, सो फर्स्ट वन हमने सेट क्यों यूज किया? कैन समबडी टेल मी कैसे पता चला ये फेमिनिन है? देयर इज अ हिंट इन दिस सेंटेंस व्हिच टेल्स मी इट इज फेमिनिन। सीटीटी क्यों यूज किया? कैन सम जस्ट एक्सप्लेन, आंसर्स आर गिवन, सो लेट्स जस्ट सी, लेट्स फिगर आउट कि सीटीटी क्यों चूज हुआ। क्यों? यस, आंसर इज सीटीटी। तनिष्का वो तो मार्क किया हुआ है स्क्रीन पे, बट माय क्वेश्चन इज सीटीटी क्यों चूज किया? वेरी गुड, द हिंट ओवर हियर इज ग्रॉन दिस विद ई। ग्रॉन विद ई मतलब फेमिनिन है, हमने सीखा है ना ये एडजेक्टिव्स, फेमिनिन वर्ड्स के लिए फेमिनिन एडजेक्टिव यूज करने का। ग्रॉन इज विद ई व्हिच मींस मेजो इज डेफिनेटली फेमिनिन, एंड इसके लिए सीटीटी। समझा ये सबको? द हिंट हियर इज ग्रॉन इज विद ई। ओके, सेकंड सेंटेंस में सीटीटी क्यों है? फेमिनिन वर्ड, कौन सा फेमिनिन वर्ड है? जस्ट टेल मी द वर्ड व्हिच इज फेमिनिन। कौन सा वर्ड यहाँ पे? वेरी गुड आर्या, बुलॉन्जरी इज फेमिनिन, इसके लिए सीईटीटी चूज किया हमने। ओके, बुलॉन्जरी फेमिनिन सिंगुलर, इसके लिए सीईटीटी। नेक्स्ट वाला वाई सीईएस, व्हाट्स द हिंट हियर? कैसे पता चलेगा मुझे? इट इज ला टैबला, आर यू श्योर? इज इट फेमिनिन सिंगुलर? इट इज विथ एस, प्लूरल ना, टेबल विथ एस, इट मीन्स हम सीएस यूज करेंगे, राइट? अंडरस्टूड? यस यू आर राइट, टेबल इज फेमिनिन, बट एट द सेम टाइम इट्स प्लूरल, टेबल विथ एस लिखा है, इसके लिए हमने सीएस लिखा है यहाँ पे। करेक्ट? अंडरस्टूड तनिष्का? Who was that? Somebody had written feminine. Okay, I think that's understood. If you've not understood, please ask. Yes, Tanishka says yes. Okay. Next वाला CE लिखेंगे कि CET लिखेंगे? सेंटेंस नंबर 4 में CET क्यों? ऐसा हिमानी क्यों CET? निशिता क्यों CE? Also write down the reason for your answer. If you're choosing CET, why CET? If you're choosing CE, why CE? The vowels are clashing. Exactly. CE लिखा तो CE का E and OFO का E clash होगा ना निशिता, right? सेंटेंस नंबर 4 में CET लिखेंगे। Yes, there is a typo error, तो आप करेक्ट कर दो, CET कर दो उसको, जैसे यहाँ पे किया है देखो। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन क्या यूज करेंगे हम? जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दैट्स इजी। यस, CES, बिकॉज फिल्म्स इज विथ, व्हाट इज द लेटर? फिल्म इज विथ S, करेक्ट, इसके लिए CES। चलो, सेंटेंस नंबर 1 में हिंट वर्ड क्या है? CET क्यों यूज किया यहाँ पे? द हिंट इज
वेरी गुड वेरी गुड, अभी सबको हिंट मिल गया है। ग्रॉन्ड इज विथ ई, मतलब ग्रॉन ई है, ई के साथ है, मतलब ऑटो फेमिनिन है, ऑटो फेमिनिन है तो हम सी टी टी यूज करेंगे। पर अभी स्टूडेंट्स मुझे एक डाउट है, यहाँ पे तो वॉवल क्लैश हो रहा है ना, क्या करने का? देखो सी टी टी ई का ई एंड ऑटो का ई, लेट इट बी, वेरी नाइस वेरी गुड परफेक्ट निशिता एम्बरलिन हिमानी, होने देने का क्लैश फेमिनिन में, ओके। In the case of feminine singular word, if the vowels are clashing, let them clash. Sentence number 2 in the chat, please. CE. Okay, very nice. क्यों CE? Cinema is masculine. L cinema. L LE. मतलब सिनेमा मैस्कुलिन है तो हमने CE यूज किया। देन सेंटेंस नंबर 3 अगेन ऊपर जैसे ही है, फिल्म विथ एस। देखो सेंटेंस नंबर 5 में भी फिल्म विथ एस था तो हमने सी एस यूज किया ऊपर वाले एक्सरसाइज में। अब नीचे वाले एक्सरसाइज में फिर से फिल्म विथ एस है तो सी एस, सेम चीज सेम रीजन, प्लूरल है। सेंटेंस नंबर 4, वेरी नाइस। ओके, सो व्हाट इज द नंबर एंड जेंडर ऑफ द वर्ड? डैश के बाद वाले वर्ड का नंबर एंड जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है, करेक्ट। तो सी आना चाहिए ना, मैस्कुलिन है तो। vowels are clashing, very good, this is what I wanted to hear। vowels clash हो रहा है इसके लिए हम सी टू यूज कर रहे हैं, ओके। एंड द लास्ट वन, मेजॉन। मेजॉन इज विथ एस, इसके लिए सी एस। सबको समझा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स? अभी आपको समझा तो सही डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स, बस हेडिंग याद रखो। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन सा है? मोमा में तोता ते वाला। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन सा है? सीई सी टी सी टी टी ई वाला, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू रिमेंबर, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर आप हेडिंग भूल जाते हो। पर एग्जाम में आपको नहीं बोलेंगे ना मोमा में वाला सॉल्व करो, तोता ते वाला सॉल्व करो या सी वाला सॉल्व करो। एग्जाम में जस्ट बोलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो आपको हेडिंग याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। we've covered demonstrative adjectives and possessive adjectives, anyone any doubt? किसी को कोई शक? रमनदीप says no, anyone any doubt? No doubt, okay okay, very good then, well done। We'll meet tomorrow, I think there's once again there's a lecture tomorrow, if you have not received the timetable you will receive it soon, okay। So au revoir, ciao, adios, tata, bye bye, take care, good night।